सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਮਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 1/10/2024 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ 1/10/2024 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 42 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, 42 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਤੰਬਰ 2028 ਤੱਕ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 36 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 2029 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2016 ਦੀਆਂ ਨੇ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017, 18, 19, 20 ਤੇ 21 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 24 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਦੋਸਤੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा तोहफा, लंबित एरियर का होगा भुगतान, डीए का भी मिलेगा लाभ, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी, कैबिनेट की मंजूरी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतन, पेंशन और छुट्टी के भुगतान के बकाया और 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक के डीए व डीआर जारी करने का फैसला किया है। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य की भगवंत मान सिंह सरकार ने राज्य के 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने छठे वेतन आयोग का बकाया, लीव एनकैशमेंट और पेंशन का एरियर देने का फैसला किया है। इसके लिए कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। दरअसल
गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में कई फैसले लिए गए हैं। पंजाब सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतन, पेंशन और छुट्टी के भुगतान के बकाया और 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक के डीए व डीआर जारी करने का फैसला किया है। राज्य में 3 लाख सरकारी कर्मचारी और 3 लाख के करीब ही पेंशन धारक हैं। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अप्रैल माह से बकाया दिया जाएगा और 2028 तक यह बकाया पूरा हो जाएगा। अप्रैल 2025 से हर माह 200 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 14,000 करोड़ रुपए से बकाया का भुगतान होगा। इसमें 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत भी शामिल है। इस धनराशि को कई फेज में जारी किया जाएगा, जिससे राज्य के 3 लाख कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। कैबिनेट ने पंजाब वित्तीय सहायता एसिड विक्टिम स्कीम 2024 के तहत एसिड अटैक पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता राशि को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह करने की मंजूरी दी है। इस योजना में अब पुरुष और ट्रांसजेंडर पीड़ित भी शामिल होंगे। इससे पहले इस योजना के तहत केवल महिला एसिड अटैक पीड़ितों को कवर किया गया था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपए है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपए प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपए से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपए मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत डीआर जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में
डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपए है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपए प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपए से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपए मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत डीआर
जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपए है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपए प्रति माह हो जाएगा। वहीं
अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपए से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपए मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत डीआर जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपए है,
जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है, महंगाई राहत डीआर जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में
186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपए है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपए प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपए से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपए मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत डीआर जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा, ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए प्रति माह है।
यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपए है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपए प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपए से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपए मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत डीआर जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था।
इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है, महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा, ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा।
सातवां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि आठवां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा, ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है।
इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। सातवां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि आठवां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है, महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा, ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा।
आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। सातवां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि आठवां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है, महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा, ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी।
केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है, महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा, ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर
के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है, महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा, ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा।
यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है, महंगाई राहत (DR) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में DR मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए DR आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा, ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा तोहफा, लंबित एरियर का होगा भुगतान, DA का भी मिलेगा लाभ, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी, कैबिनेट की मंजूरी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं।
सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतन, पेंशन और छुट्टी के भुगतान के बकाया और 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक के डीए व डीआर जारी करने का फैसला किया है। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य की भगवंत मान सिंह सरकार ने राज्य के 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने छठे वेतन आयोग का बकाया, लीव एनकैशमेंट और पेंशन का एरियर देने का फैसला किया है। इसके लिए कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। दरअसल गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में कई फैसले लिए गए हैं। पंजाब सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतन, पेंशन और छुट्टी के भुगतान के बकाया और 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक के डीए व डीआर जारी करने का फैसला किया है। राज्य में 3 लाख सरकारी कर्मचारी और 3 लाख के करीब ही पेंशन धारक हैं। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अप्रैल माह से बकाया दिया जाएगा और 2028 तक यह बकाया पूरा हो जाएगा। अप्रैल 2025 से हर माह 200 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 14,000 करोड़ रुपए से बकाया का भुगतान होगा। इसमें 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत भी शामिल है। इस धनराशि को कई फेज में जारी किया जाएगा, जिससे राज्य के 3 लाख कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। कैबिनेट ने पंजाब वित्तीय सहायता एसिड विक्टिम स्कीम 2024 के तहत एसिड अटैक पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता राशि को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह करने की मंजूरी दी है। इस योजना में अब पुरुष और ट्रांसजेंडर पीड़ित भी शामिल होंगे। इससे पहले इस योजना के तहत केवल महिला एसिड अटैक पीड़ितों को कवर किया गया था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਮਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 1/10/2024 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ 1/10/2024 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 42 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, 42 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਤੰਬਰ 2028 ਤੱਕ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 36 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 2029 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2016 ਦੀਆਂ ਨੇ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017, 18, 19, 20 ਤੇ 21 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 24 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਦੋਸਤੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।